Assalamu alaikum dear students. Hope you are all fine. For last couple of days we have been discussing national income and its related concepts, and it was GDP at market price which we discussed recently. और आप जान गए कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है it's defined as the market value of final goods and services produced during a year within the domestic territory of a country. ठीक, तो हमने अब तक जीडीपी डिस्कस किया. जीडीपी, gross domestic product, right? Now let's today discuss gross national product. दो बातें हैं यहाँ. It is domestic and it is national. Both are at market price. देखिए हमारा जो जीडीपी है ये जीएनपी बन जाता है. जीडीपी हमारा जीएनपी बन जाता है if we add the factor income from abroad, that is the income from the rest of the world or from the foreign sector. If it is added to the domestic it becomes national, right? तो हम कह सकते हैं कि हमारा जीएनपी बराबर हो सकता है, इट इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. अब्रॉड मीन्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. That is what we pay to the rest of the world and what we earn from the rest of the world. Net is the subtraction of the two. ठीक, that's minus. What goes out is minus. What comes in is plus. And finally what we get there, that's net factor income from abroad. So GDP में add करना है net factor income from abroad, we will get GNP. Again अगर हम define करें gross national product, definition is same. It's also defined as the market value of the final goods and services produced within the domestic territory of a country by the normal residents during an accounting year, right? तो previous ही definition यहाँ पे hold होती है. That is definition is same. What is the difference then? Here we may add net factor income from abroad, right? GNP, gross national product अटेन करने के लिए, हासिल करने के लिए जीडीपी में हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करनी है एंड आल्सो प्लस कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, दैट इज डेप्रिसिएशन. दो बातें यहाँ पे, ये भी ग्रॉस है ये भी ग्रॉस है. इट मीन्स दैट जीएनपी हो या जीडीपी हो, बोथ इंक्लूड द एलिमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन. अगर हम डेप्रिसिएशन लेस करें ये ग्रॉस के बजाय नेट हो जाता है. ठीक, so we can define gross national product as the money value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country plus net factor income from abroad and plus consumption of fixed capital, यानी कि depreciation जिसे हम कहते हैं, depreciation. अब यहाँ बात आती है नेट फैक्टर इनकम की. नेट फैक्टर इनकम क्या होती है फ्रॉम अब्रॉड? देखिए इट इज द डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर इनकम, चाहे रेंट हो, वेज हो, इंटरेस्ट हो, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एटसेट्रा earned by our residents from rest of the world. ठीक, earned by our residents from rest of the world and factor income is earned by non-residents within our country. We earn from rest of the world and they earn from ours. If we deduct what they have earned and what we have earned, actually it's written as x plus m, x minus m, right? Value of exports minus value of imports, x minus m, and we get net factor income from abroad, right? It is added to domestic, then it becomes national. देखिए
नेट फैक्टर इनकम इज अर्नड बाय आवर रेजिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम इज अर्नड बाय नॉन रेजिडेंट्स, ठीक है ना। जो लोकल्स होते हैं यहाँ की, दे आर द रेजिडेंट्स, नॉर्मल रेजिडेंट्स, और नॉन रेजिडेंट्स वो होते हैं विच आर द रेजिडेंट्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन आवर कंट्री। और यहाँ आपको एक बात याद रखनी है, जो नेट फैक्टर इनकम है ये माइनस भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, ठीक। इफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है उसका मतलब है नेशनल प्रोडक्ट वुड बी ग्रेटर देन, हमारा ग्रास नेशनल प्रोडक्ट ज़्यादा होगा किससे, देन ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर हमारी नेट फैक्टर इनकम पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो हमारा ग्रास नेशनल प्रोडक्ट लेस हो सकता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक। You have to keep this thing in mind. The next is concept which we have to discuss is net national product. अभी हम ग्रास की बात कर रहे हैं, अब नेट में हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगेन अगर हम डेफिनेशन की तरफ जाएं, इट्स अगेन द सेम एज मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट। तो देखिए अगर हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को लें, यू आर फुली अवेयर विद व्हाट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये ग्रॉस से अब हम इसे नेट बनाना है, नेट कैसे बनेगा, इट विल बिकम नेट बाय डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन becomes net national product at market price. Very simple है ये. So defining net national product at market price, we can say that it's the market value of final goods and services produced within the domestic territory of a country along with net factor income from abroad during an accounting year minus depreciation. ठीक, या यूं भी हम लिख सकते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, अगर हम ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट से भी इसे हम हासिल कर सकते हैं। अगर हम ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट से लेस करें डेप्रिसिएशन और माइनस करें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस ऐड करें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वी विल गेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। या अगर नेट नेशनल प्रोडक्ट में ऐड करें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस करें और ऐड करें डेप्रिसिएशन, ये अगेन यही बनेगा, ठीक है ना। इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट डेप्रिसिएशन और कैपिटल कंजप्शन इन्वॉल्व्स 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन पे में कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं। नंबर 1 होता है नॉर्मल वियर एंड टियर, नॉर्मल वियर एंड टियर, इट रेफर्स टू दोज एक्सपेंसेस विच आर borne on account of wear and tear of fixed capital like machine due to their continuous use, जिसे हम यूजर कास्ट कहते हैं। एक बात, दूसरी बात डेप्रिसिएशन में एक और कास्ट आता है दैट इज ऑब्सोलिनेंस। ऑब्सोलिसेंस क्या होती है, इट रेफर्स टू दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर्स बिकॉज ऑफ सम कैपिटल इक्विपमेंट बिकेम ऑब्सोलेट और आउट ऑफ डेट विद इन द इंट्रोडक्शन ऑफ लेटेस्ट मशीन एंड इक्विपमेंट्स। कुछ टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है, अब वो काम की नहीं रहती क्योंकि उसके सबस्टिट्यूट्स ऐसे होते हैं, नई टेक्नोलॉजी ऐसी होती है कि ये टेक्नोलॉजी खुद ब खुद गायब हो जाती है, ठीक है ना। तो इस पे भी एक्सपेंसेस आते हैं, ठीक है ना। इन एडिशन टू दिस वी हैव एक्सीडेंट ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी, दूसरा ऑब्सोलेसेंस है, देन वी हैव एक्सीडेंटल ब्रेकडाउन, किसका, ऑफ मशीनरी। ये एक्सीडेंटल ब्रेकडाउन क्या होता है, शॉर्ट सर्किट की वजह से, आग की वजह से या और कोई हादसा पेश आता है जिससे हमारी मशीनरी
हमारा प्लांट जल जाता है, एक्सीडेंट का शिकार होता है या और कोई प्रॉब्लम होती है। दीज 3 एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन डेप्रिसिएशन। ठीक है ना। तो इस तरह से हम नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी एनएनपी कैसे हम हासिल कर सकते फ्रॉम जीडीपीआर जीएनपी। ठीक है ना। वी विल कंटिन्यू द डिस्कशन ऑन द concepts of national income again in the next lecture. तब तक के लिए go through the discussion which we made. आपकी बुक्स में डिटेल में दिया गया है ये कंसेप्ट, तो वहाँ क्लियर कीजिए। अगर कहीं पे कोई डाउट आता है तो कंसल्ट मी, SMS मी, आई एम एट योर डिस्पोजल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।